back to my channel. Today in this video we will discuss about one of the most important treatment regarding reconstitution of partnership firm for the chapter admission of partner, that is revaluation of assets and liabilities. Now revaluation of assets and liabilities is required when a new partner is admitted in the firm. Okay, and before we go into this particular chapter, revaluation of assets and liabilities, let us come to know what is revaluation account. So a revaluation account is a profit and loss account and is a ledger account which shows the distribution of profit and loss due to the revaluation of assets and liabilities at the time of reconstitution of firm. And the different cases of reconstitution, you all know, we have done one, that is change in profit sharing ratio among existing partners. Second one that we have started, that is admission of partner, retirement and death of a partner. Now what is the nature of this revaluation account? As the other name, जो दूसरा नाम है revaluation account का, it is profit and loss adjustment account. Means an account where we are going to adjust the profit and loss due to what? Due to revaluation of assets and liabilities. So it is a nominal account in nature, and that's why if there is any kind of profit due to change in the value of assets and liabilities, it will be posted on the credit side of revaluation account, and if there is any kind of loss due to the revaluation of assets and liabilities, it will be posted on the debit side. And the balance, that is the difference amount, the net amount of profit or loss, it is transferred or it is distributed among the partners. Rather, I would say that among the old partners. So now let us see the format of revaluation account first of all. Okay, you see, it is a very simple format. Debit and credit, two sides we have. The debit sides, here what is posted? Two assets. The decreased value of asset now is posted here. Why decreased value of asset? Decreased value of asset मतलब asset का घटा हुआ value यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि जब assets का value घटता है तो वो business के लिए loss है, इसीलिए वो debit side में आ गया. उसके बाद टू liability increase in value. अब देखिए just the opposite है, तो opposite लिखा हुआ लेकिन बात सेम है, क्योंकि जब हमारी देनदारी बढ़ जाती है तो वो भी तो हमारे लिए घाटा है, तो इसीलिए ये भी डेबिट साइड में आ गया. किसी भी प्रकार का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी है या देनदारी जो कि पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ है, दोज लायबिलिटीज विच वी हैव नॉट रिकॉर्डेड प्रीवियसली बट now they are to be recorded, so those liabilities are to be posted on the debit side. Next come to the credit side. On the credit side you see buy asset increase in value, मतलब जो भी assets का value increase होता है, value assets का value increase होना मतलब firm को profit होना, तो इसीलिए वो credit side में हुआ. Liability buy liability करके decrease in value मतलब liability का value, देनदारी अगर घट जाएगा, if the liabilities decrease it is profit for us, so it is posted on the credit side. Any kind of unrecorded liability, that like there was a typewriter in the business or a computer in the business or a laptop in the business which was not brought into account previously, तो उस asset को record करना है, तो इसीलिए एंट्री तब आपका हो जाता है बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बिकॉज ये एसेट्स जब आपके बिजनेस में आ जाएंगे तो वो आपके प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, आपको और इनकम अर्न करके देंगे. और इन दोनों साइड्स का डिफरेंस अमाउंट जो होता है, अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड
कम का टोटल कम है तो डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा ओल्ड रेशियो में। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो लॉस हो जाएगा, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को जाना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन। तो देखिए, जो अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज क्या पास करना है, ठीक है ना, ये तो अकाउंट की बात गई। अब जर्नल जो बेस होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का बेस होता है जर्नल। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगा कि व्हेन, पहला नंबर 1, ओके, द फर्स्ट जर्नल एंट्री, when the value of any asset increases, अगर किसी भी एसेट का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस, वैल्यू अगर घट गया तो रिवैल्यूएशन में क्या होगा, लॉस होगा। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, एसेट्स का वैल्यू घट गया तो क्रेडिट किया गया। सेकेंड वन जो है वो है व्हेन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इंक्रीजेस, अगर कोई भी एसेट्स का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है तो तब जर्नल एंट्री क्या होगा, अब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे। देखिए गोल्डन रूल जो है वो यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक। और रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एंट्री जो है, एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड। जब कोई अनरिकॉर्ड, तो किसी भी प्रकार का अनरिकॉर्डेड एसेट होगा तो आपका वैल्यू ऑफ एसेट्स जो बढ़ रहा है तो इसीलिए वो डेबिट होगा, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए इन केस ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है ना, जब हमको लायबिलिटीज रिकॉर्ड करना है तो व्हेन एनी लायबिलिटी का वैल्यू जब डिक्रीज होता है, तो लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज होना वो तो मेरे लिए प्रॉफिट होगा ना, और लायबिलिटी जो है वो उसका नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अब वैल्यू डिक्रीज किया मतलब लायबिलिटीज को डेबिट हो जा रहा है, ठीक है। टू रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, इस कारण से देनदारी घट रहा है तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड जो है इंक्रीज अगर होगा तो रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, लॉस, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट किया गया टू लायबिलिटीज अकाउंट। वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। अब तीसरा जो एंट्री आ रहा है वो है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब रिवैल्यूएशन में आपका लॉस हो रहा है, देनदारी बढ़ जा रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब देखिए यही जो हमारा ट्रांजैक्शन जो बेसिक जर्नल क्या होगा वो तो हम देख लिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब एक्चुअल में जब एडजस्टमेंट्स दिए रहते हैं तो वहाँ पर समझने में दिक्कत आती है। तो अभी हम जो डील करने जा रहे हैं कि एडजस्टमेंट्स कैसे डील करेंगे ताकि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बिना किसी दिक्कत का बना लें। अगर हम सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या कहना चाह रहा है एडजस्टमेंट, वो अगर समझ ले तो वही चीज़ बच्चों आज हम आपको समझा देते हैं, और परीक्षा में भी या आने वाले समय में भी अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहला फर्स्ट, if any asset, मान लेते हैं स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। नाउ दिस आइटम, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर वैल्यूड है ना, बाई 10%। इसका मतलब क्या होता है पहले ये जानिए, ये ओवर वैल्यूड बाई 10% इसका मतलब क्या होता है।
इसका मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है वो आपका 60,000 है। ठीक है, मतलब एक्चुअल वैल्यू स्टॉक का जो है वो 60,000 है मार्केट वैल्यू अभी, लेकिन बुक वैल्यू कितना दिया हुआ है 54,000। तो एक्चुअल वैल्यू आप कैसे निकालेंगे 54,000 इंटू 100/90, मतलब 10% आपको घटा के वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब घटा के वैल्यू ये 54,000 जो दिया हुआ है ये वैल्यू घटा हुआ वैल्यू है। आपको एक्चुअल वैल्यू पता करना है जो कि हमने पता कर लिया 54,000 इंटू 100/90 करेंगे तो आपका कितना आ जा रहा है 60,000। अब देखिए जब एक्चुअल वैल्यू 60,000 है मतलब अभी करंट वैल्यू और पुराना वैल्यू कितना है 54,000, तो हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या हो गया इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक हो गया है। ठीक है ना, स्टॉक का वैल्यू जो है वो 6,000 से बढ़ गया। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 6,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, इफ एनी स्टॉक, मतलब अगर कोई एसेट हम लोग स्टॉक ही मान लेते इज अंडर वैल्यूड, अब यहां पर ठीक थोड़ा सा उल्टा है, अंडर वैल्यूड बाई 10%। ठीक है, ठीक इस लाइन को थोड़ा सा आप माइन्यूटली समझ लीजिए, अंडर वैल्यूड का मतलब। तो यहाँ पर जब अंडर वैल्यूड रहेगा तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, जो बुक वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख के भी दे देते हैं, बुक वैल्यू थोड़ा सा यहाँ से लिख देते हैं, बुक वैल्यू इनटू आप क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाय रेट प्लस 100। ये वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे बुक वैल्यू इंटू 100 बाई रेट प्लस 100 तो आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक जो है वो निकल जाएगा। ठीक है ना, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक ना हियर जो है जब एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक जो आपका निकल जाएगा और वो यहाँ पर एक ज़ीरो और होना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, 7,000 गलती से टाइप्ड हो गया है, ये एक जीरो और बढ़ना है 70,000 आएगा। तो आपका जो स्टॉक है वो क्या है, अभी करंट वैल्यू है 70,000 लेकिन बुक वैल्यू क्या दिखा रहा है 77,000 मतलब 77,000। तो 7,000 से आपका स्टॉक क्या हो गया डिक्रीज हो गया है। तो अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि 7,000 से आपको अपना स्टॉक का वैल्यू को घटा देना है। तो रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया, स्टॉक का वैल्यू घट गया है मतलब रिवैल्यूएशन में लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ओके, अब देखिए सेकंड, अगर आपको कहा हुआ है अगर आपका जो है ये दिया हुआ है कि इफ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए लैंड ही इंक्रीज हो रहा है बाई 40,000। ठीक है, लैंड का जो वैल्यू है वो आपका इंक्रीज हो रहा है 40,000 से, तो आप क्या कीजिएगा बाई 40,000। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रीपोजिशन का हेर फेर होता है। ठीक है ना, प्रीपोजिशन का कमाल यहाँ पर देखने को मिलता है और वो क्या है कि बाई शब्द यूज होता है। इंक्रीज्ड बाई मतलब जैसे 40,000 से बढ़ गया। ओके, 40,000 से अगर बढ़ गया है, ठीक है, इंक्रीज्ड बाई 40,000 लैंड का वैल्यू मतलब लैंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ है, लैंड बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट
ठीक उसी तरह से अगर लिखा है कि फर्नीचर का वैल्यू जो है डिक्रीज्ड बाय 30,000, मतलब नेट अमाउंट 30,000 घट गया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 30,000। अब आपको अगर कहे कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000, पहले से बैलेंस शीट में कोई कुछ नहीं दिया है, लेकिन खाली नीचे एडजस्टमेंट में अगर दिया हुआ है कि क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट 2,000, तो ये तो लाइबिलिटी है ना। बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, मैम ये तो एसेट साइड में। अरे भाई एसेट साइड में वो माइनस करके, डेटर से माइनस करके दिखाया जाता है। एनी काइंड ऑफ प्रोविजन इज लाइबिलिटी फॉर यू। तो अब देखिए कि ये जब लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, और तो रिवैल्यूएशन में ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा, तो हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। ठीक है, अब आते हैं अगला। अब देखिए यहाँ पर क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट ₹3,000, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो 2,000 है। तो पहले 2,000 था, अब उसको कितना करना है 3,000। तो एक्चुअल कितना बढ़ा लाइबिलिटी, 3 और 2 का जो डिफरेंस है 1,000, उससे आपका लाइबिलिटी बढ़ गया है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बिकॉज लॉस हो रहा है टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, लेकिन अमाउंट क्या बैठेगा 3,000 माइनस 2,000 इक्वल्स टू 1,000। ये वाला जर्नल एंट्री थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री है वो है अगर लाइबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इज डिक्रीज्ड बाय 10,000, डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट ना हुआ, तो क्रेडिटर्स जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्रेडिटर इज डिक्रीज बाय 10,000, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हुआ 7वां नंबर। 8वां नंबर एंट्री ये कि इफ एनी वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, मान लेते हैं क्रेडिटर ही चलिए मान लेते हैं, है ना, कि इंक्रीज हो रहा है, कितना से इंक्रीज हो रहा है 12,000 इंक्रीज हो रहा है बाय 12,000, मतलब 12,000 से बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब आते हैं नेक्स्ट कि अगर जो आपका क्रेडिटर है उसका इज वैल्यूड एट 24,000, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि क्रेडिटर इज टू बी वैल्यूड एट 24,000, और बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में वैल्यू दिया हुआ है 30,000। तो पुराना वैल्यू है 30,000, नया वैल्यू कितना हो रहा है 24,000, बढ़ा कि घटा, ऑब्वियसली घट गया। कितना से घट गया 6,000 से, तो ये प्रॉफिट हो गया फर्म के लिए, इसीलिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये वाला एंट्री बच्चों। उसके बाद अगर दिया हुआ है कि क्रेडिटर इज टू बी वैल्यूड एट 40,000, मतलब अब क्रेडिटर का जो वैल्यू है वो 40,000 होना है। पुराना वैल्यू मतलब बुक वैल्यू जो है बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाया जा रहा है वो 35,000 है। तो अब देखिए क्रेडिटर्स का वैल्यू क्या हो गया, पहले था 35,000, अब 40,000 हो रहा है 40,000, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ क्रेडिटर तो बढ़ गया, तो ये लॉस हो रहा है, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000 द डिफरेंस अमाउंट। ठीक इसी तरह से लैंड इज टू बी इंक्रीज टू 40,000। अब लैंड क्या है, एसेट है, और उसका पुराना जो बुक वैल्यू दिया हुआ है वो 35,000 है, तो पुराना वैल्यू कम था, नया वैल्यू ज़्यादा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये 11 नंबर एंट्री हो गया। अब 12 नंबर लैंड इज टू बी रिड्यूस टू 40,000, अब बोला है टू 40,000, मतलब अब जो है 40,000 होना है। पहला बुक वैल्यू कितना था 50,000 दिया हुआ है, अब कितना होना है 40,000, तो कितना घट गया 10,000 घट गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किए 10,000 से टू लैंड अकाउंट 10,000।
एक और एंट्री जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये तो 12 नंबर बता चुके हैं, अब ये 13 नंबर, ये हमारा लास्ट एंट्री है, ठीक है ना, ये हमारा लास्ट एंट्री है। ठीक, ये जो लास्ट एंट्री है इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। एक लायबिलिटी क्लेम जो कि इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर 20,000 इज सेटल्ड एट 14,000। सीधा बात इसमें क्या है, इसका मतलब हो जाता है कि एक क्लेम था 20,000 का, है ना, मतलब किसी को 20,000 रुपया देना था, उसको हम 14,000 में निपट लिए। आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, पहले ये बात सोचिए। आपको किसी को 20,000 देना था और आपने 14,000 दे के उसको सेटल अप कर लिए, तो 6,000 का भाई आपको फ़ायदा हो गया ना। तो अब आपका जर्नल क्या होगा, देखिए, क्रेडिटर तो आपका 20,000 से घट गया, देनदारी घट गया ना, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट कर दिए 20,000। पेमेंट आपने कितना किया, 13 नंबर वाला बता रहे हैं, पेमेंट आपने कितना किया 14,000, तो 2 पैसा गया, डेबिट व्हाट गोज आउट टू बैंक अकाउंट, है ना, 14,000। और प्रॉफिट कितना हुआ, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके 6,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये 13 जो हमने एडजस्टमेंट्स आपको दिखाए हैं, मैं आशा रखती हूँ कि ये सारा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसको देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का क्वेरीज है, देन प्लीज़ कॉल मी एट 8002061999। टिल देन, थैंक यू।